that is given, that is being presented over here. We got outermost cell wall, inner cell membrane, cytoplasm. We got nuclear contents. So we have to see for their mechanism of action related to their site of action. And starting for those beta-lactamase, we have got penicillin, cephalosporin, carbaminops, and monobactams. So they have got primary target. They interfere for that cell wall synthesis. And when the cell wall synthesis is being inhibited or that is being interfered, you can see that integrity will become looser, and you can expect that this bacterial cell become rupture because of that internal high osmotic pressure. Then we got vancomycin, bacitracin, that is also related to interfering with that working and integrity of cell wall, but their site of action is different as compared to those beta-lactams. So we will discuss that in detail. Bacitracin, we have got other site of action for their activity that is known as cell membrane, and that will be interfered for activity, for integrity, for functioning, for their structure architecture changes through polymyxin. We got cytoplasmic metabolic processing that will be interfered by folate synthesis that will be interfered by sulfonamides and trimethoprim, 4-trimetazole. Conversion of dihydrofolate and trihydrofolate will be interfered by sulfonamide as well as by trimethoprim. We have to see for those nuclear contents either through ribosomal nuclear contents or nucleotide. So ribosome either that are being interfered at 30 S subunit by tetracycline or aminoglycoside, or 50 subunit by macrolide, azithromycin, clarithromycin, chloramphenicol, or some of those clindamycin. We also have got some ciprofloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin that works through interfering DNA gyrase, and RNA polymerase is interfered by working by reform peg. ये जनरल क्लासिफिकेशन थी, हर एक की जो है फिर अपने तौर पे डिस्कस करते हैं. ठीक हो गया? ठीक है ना? ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है, बस ये काफी है. किसी को मसला तो बोले, अभी बोले. ठीक है. Starting with beta-lactams, one of the most popular, most widely used is penicillin. We have to know some of those major items related to penicillin that are mostly obtained from natural source or that is being modified semi-synthetically. ये कुछ important points हैं. पेनिसिलिन शुरू करने से पहले इसको पहले ज़हन में बिठाएं तो फिर बात करनी आसान होगी, बात समझनी भी आसान है. ठीक है. पेनिसिलिन जो है वो मोस्टली क्या होंगे, नेचुरल सोर्स से होंगे, या फिर हम लेबोरेटरी में इसको मॉडिफाई करके बनाएंगे तो सेमी सिंथेटिक होंगे. ठीक हो गया. रिलेटेड टू दैट ओरिजिनेशन, रिलेटेड टू दैट सोर्स, रिलेटेड विद दैट मटेरियल फ्रॉम विच दैट कैन बी ऑब्टेन्ड. Bactericidal, they have got major pattern of activity is cidal, that is not static. ठीक है. और cidal के साथ इसके साथ दूसरी important बात साथ लिखते हैं अगर यहाँ पे नहीं है. So they are cidal in active multiplication phase of the bacteria. तो bactericidal कब है? Bactericidal तब है जब वो बैक्टीरिया एक्टिव मल्टीप्लिकेशन फेज में हो. अगर बैक्टीरिया पहले से बना हुआ है तो वहां पे फिर वो भी वहां पे भी सिडल है, लेकिन उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल एक्शन व्हेन दैट बैक्टीरिया इज इन एक्टिव रिप्रोडक्शन फेज. तो ऑलरेडी जो बैक्टीरिया बने हुए हैं तो उसके लिए सिडल है, लेकिन उसकी एफिकेसी कम है एज कंपेयर टू सिडल एक्टिविटी अगेंस्ट दोज बैक्टीरिया विच आर एक्टिवली रिप्रोड्यूसिंग. ये बात जरूरी ज़हन में रखें. पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरियासिडल हैं,
लेकिन मेनली किन के लिए हैं? वो बैक्टीरिया जो एक्टिवली रिप्रोड्यूस होने हो उनके लिए बैक्टीरियासिडल है। जो पहले से बने हो तो उसके लिए बैक्टीरियासिडल है, लेकिन उसकी एफिकेसी कम है और उसका मैकेनिज्म भी थोड़ा डिफरेंट है। वो जब मैकेनिज्म पे बात आएगी तो उस वक्त बात करेंगे, समझ लें। We have got varying spectrum. We got very narrow spectrum of penicillin. We got broader spectrum of penicillin. We have got extended spectrum of penicillin. We will discuss that accordingly. We got cell wall synthesis inhibitors. Major mode of action is related to this inhibition of cell wall. There is synthesis is being interfered, that is being inhibited, and you can expect that lesser integrated cell wall will be presented for those bacteria. And if that integrity, if that architectural structure for cell wall is not properly there, you can expect that this bacteria will be highly vulnerable for rupturing because of that high osmotic pressure inside that bacterial cell. We've got high therapeutic index, mean they are more safe as compared to other antibiotics. Safety profile for that host to which that is being given. Host mean that patient to which that is being given. Host doesn't mean the target. एक target है, एक host है. तो target जो है वो bacteria है, host वो patient है जिसको हम दे रहे हैं. तो therapeutic index is safety profile for that host, not for that target. समझ रहे हैं? And ends when you can see for that wording for saline. जहाँ पे saline है तो इसका association जो है वो penicillin के साथ होगा. तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं, उसके बाद फिर आप प्रोसीड करते हैं, आगे जाएं. अगर आवाज में, स्पीड में या स्लाइड में कोई मसला है तो बताएं. चलें. First discovered by Fleming in 1928-29. That was accidental discovery, as usual. And penicillin was first antibiotic to be used clinically in 1941. तो जो आइडेंटिफाइड हुआ है, डिस्कवर्ड हुआ है 28 में हुआ है, और फिर उसको 11-12 साल लगे हैं ट्रायल से, फेजेस से पास होते हुए अप्रूवल तक. तो क्लिनिकली बने हैं, क्लिनिकली अप्रूवल के लिए उसको 12 साल लगे हैं टू बी अप्रूव टू बी फॉर यूज इन पेशेंट्स. ठीक है. It was originally obtained from a fungus Penicillium notatum, but the present source is high yielding mutant of Penicillium chirosidium. We got chemistry of penicillin. Chemistry is important because we will discuss that most of those issues that are related to either mechanism of action or its resistance or its inefficacy or its lysis, that will be based on chemical structure of that penicillin. तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर को जांचना बहुत जरूरी है. जब तक स्ट्रक्चर जहन में होगा तो उसी के मुताबिक आपको मैकेनिज्म की समझ आएगी, उसके रेजिस्टेंस की भी समझ आएगी और उसकी इनएफिकेसी या उसकी जो है ना स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की भी समझ आएगी. बाज दफा स्ट्रक्चर की बुनियाद पर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कम और ज्यादा होगा, समझ लें. तो जरा स्ट्रक्चर को ध्यान दें. अच्छा है तो केमिस्ट्री, लेकिन आपके केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कौन सा स्लाइड दिखाऊं यार? हमीद कौन सा स्लाइड चाहिए बताएं. बाज़ दफा मैं मैसेज में तवज्जो नहीं दे सकता, तो फिर रह जाए तो फिर आप बोलें. अच्छा जी, केमिस्ट्री की बात करें. अच्छा, केमिस्ट्री को जरा समझें तो केमिस्ट्री की बुनियाद पर ये तीनों काम होंगे. तीनों काम कौन से होंगे? उसका मैकेनिज्म और मोड ऑफ एक्शन भी इस केमिस्ट्री के साथ है, उसके रेजिस्टेंस भी इसके इस स्ट्रक्चर के साथ होगा. ठीक हो गया. और उसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है वो भी इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पे आगे पीछे होगा. तो क्या स्ट्रक्चर है? 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें, 3 कंपोनेंट्स हैं. मेरे कर्सर को देखते जाएं. आपको कर्सर नजर आ रहा है? यस नो कह दें मेरे भाई. कर्सर नजर आ रहा है तो आप यस नो कह दें प्लीज. यस सर. ठीक है.
three major components related to chemical structure of penicillin. This one, 5-membered ring, 4-membered ring, and this R. ठीक है? So these are three major components which have to be responsible to cover three of these aspects. मैंने आपको 3 aspect क्या बताए? 3 aspect क्या बताए? जरा बताएं, जाके तो सही ना। 3 aspect क्या बताए? 3 components हैं और वो 3 aspect को cover करते हैं। तो ये 3 है, thiazolidine ring, beta lactam ring, and the side chain of R. thiazolidine, beta lactam और R की बुनियाद पे ये इसके मेंबर्स बनते जाएंगे। R कम बड़ा छोटा होता जाएगा तो उसके मेंबर्स बनते जाएंगे, और मेंबर्स ऐसे बनेंगे कि बाज मेंबर जो हैं वो ग्रुप के साथ है या छोटे फंक्शन ग्रुप के साथ है या कोई साइड चेंज कम हो बड़ा होगा, तो वो आपके काइनेटिक्स को इंटरफेयर करेंगे, चेंज करते जाएंगे। बाज जगह एक ग्रुप जो है वो एक तरह के काइनेटिक देगा, दूसरा ग्रुप जो है वो दूसरी तरह के काइनेटिक देगा। ठीक हो गया? मोड ऑफ एक्शन में रोल प्ले करेंगे। मोड ऑफ एक्शन में कैसे रोल प्ले करेंगे? वो पेनेट्रेशन टू दैट टारगेट एरिया वेयर दीज पेनिसिलिन विल हैव टू अटैच विद दैट बाइंडिंग प्रोटीन. So this R will have to play its role, and that penetration for those penicillin will be associated to that bulk of that R. दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि वो आपको स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इसी की बुनियाद पर फिर कंट्रोल होंगे कि आपने कौन सा R उसके साथ लगाया है, तो उस R की बुनियाद पर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी वो नैरो से एक्सटेंड हो जाएगा या एक्सटेंड से ब्रॉड हो जाएगा, और ब्रॉड में भी फिर सेलेक्ट बैक्टीरिया के लिए हम फिर उसको कंट्रोल करते जाएंगे। तो ये बात जरा याद रखें। अच्छा, आर किस लिए है? आर फार्माकोकाइनेटिक्स कंट्रोल के लिए है, आर पेनेट्रेशन के लिए है, पेनेट्रेशन टू द टारगेट एरिया, टारगेट साइट, टारगेट प्रोटीन। बैक्टीरिया टारगेट नहीं है। अच्छा, बैक्टीरिया तक पहुंचेगा, लेकिन बैक्टीरिया में टारगेट एरिया तक पहुंचना, बैक्टीरिया में टारगेट प्रोटीन तक पहुंचना, दैट विल आल्सो बी एसोसिएटेड विद दैट आर। और तीसरी बात यह है कि वो फिर आपके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा कि वो पेनेट्रेशन किन किन बैक्टीरिया में करता है, तो वो किन किन बैक्टीरिया में करेगा, तो उसकी बुनियाद पे उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी भी वेरी नैरो से नैरो, और नैरो से एक्सटेंडेड, और एक्सटेंडेड से ब्रॉड। समझ रहे हैं? बीटा लैक्टेम इज दैट बैकबोन फॉर एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी। बीटा लैक्टेम उसका बैकबोन है, इसके बगैर आप आर की कोई वैल्यू नहीं है। आर हम कहते हैं ना कि काइनेटिक्स को, या पेनेट्रेशन को, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लेकिन ये बीटा लैक्टेम ही असल चीज है जिसकी बुनियाद पे आपकी कोई एक्टिविटी होगी तब वो मॉडिफाई होगा ना। तो आर इज नथिंग विदाउट बीटा लैक्टेम रिंग। बीटा लैक्टेम इज बैकबोन फॉर एनी टाइप ऑफ इट्स एंटीबायोटिक एक्टिविटी। आपको समझ आ रही है मेरी बात? मैं आगे जाऊं? स्ट्रक्चर जरूरी है, स्ट्रक्चर को समझना चलने जी। A thiazolidine ring, thiasulfur and azonitrogen, that is 5-membered ring. Remember this. B for that beta lactam ring, ये B, ये राइट साइड के स्ट्रक्चर में देखेंगे A thiazolidine है और ये B बीटा लैक्टेम है। A plus B 6 अमीनो पेनिसिलिक एसिड, ये A और B को दोनों को मिला के ये जो है वो पेनिसिलिक एसिड बन रहा है। ठीक हो गया? और 6 ये कार्बन है जिसकी बुनियाद पे उसके साथ फिर दूसरे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। 6 belongs to this. R side chain containing various functional groups. If R contains hydrophilic group, it will become broad spectrum. ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसको समझना फिर मुश्किल हो जाएगा। 12 मैं पढ़ के दे देता हूं, rest belongs to you.
and will be effective against gram-positive as well as gram-negative bacteria, ampicillin, amoxicillin. If R do not contain hydroxyl or carboxylic, it will become narrow and will be effective against gram-positive bacteria, penicillin G and B. If R is small group, it will be destroyed by beta-lactamase producing bacteria, penicillin GB and ampicillin. If R is bulky, it will not be destroyed by beta-lactamase producing bacteria, oxacillin, cloxacillin and dicloxacillin. And flucloxacillin. बहरहाल इतना डिटेल अगर आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम केमिस्ट्री की बुनियाद पे इतने 3 चीजें जरूरी हैं. 3 चीजें कौन सी जरूरी हैं कि आपके सारे एंटीबायोटिक का बैकबोन या बीटा लैक्टम है और उसके उस एक्टिविटी को आगे पीछे करने के लिए काइनेटिकली या डायनेमिकली या स्पेक्ट्रम वाइज या पेनेट्रेशन वाइज ये फिर आर जरूरी है. बस ये 2 बातें तो कम से कम याद रखें ना. सारी बातें याद नहीं रख सकते तो ये बातें याद रखें. बीटा लैक्टम के बगैर पेनिसिलिन काम नहीं करेगा, और अगर काम करेगा तो अच्छा करेगा, बुरा करेगा स्पेक्ट्रम वाइज, काइनेटिक वाइज, पेनेट्रेशन वाइज. तो वो अच्छा और बुरा जो है या कम और ज्यादा जो है वो इस आर के साथ होगा. मैं प्रोसीड बैगी जाऊं. चलिए again the structure. We got this beta lactam that will be acted upon by penicillinase. This enzyme is responsible to cause rupturing of this beta lactam. This is also known as beta lactamase. पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज दोनों एक एंजाइम है जो आपके बीटा लैक्टेम बी पे जाके एक्ट करेंगे और इसको जाके क्लीव करेंगे. क्लीवेज इसकी जो है ना सी और एन बॉन्ड को तोड़ेंगे. तो जब ये टूट जाएगा तो फिर पेनिसिलिन का कोई काम नहीं रह सकता, फिर वो कोई एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक्टिविटी इस बीटा लैक्टेम लिंक की बुनियाद पे ही होगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया. और वन ऑफ द अदर एंजाइम व्हिच विल बी रिस्पांसिबल टू इंटरफेयर फॉर इट्स एक्टिविटी दैट विल बी एमिडेज. तो वो एमिडेज जो है rather to act on beta lactam, it will act on that side chain. जैसा हमने कहा ना 6 पेनिसिलिक एसिड है, तो वो 6 पे जो अटैच फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो उस फंक्शनल ग्रुप को जाके तोड़ेगा. तो जब वो टूट जाएंगे तो फिर उसकी एक्टिविटी में फिर वो चेंज हो जाएगी. दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन फॉर पेनिसिलिन. अच्छा, पेनिसिलिन को ये आसान प्रेजेंटेशन है, यू मस्ट नो related to its classification. Source wise, route of administration wise, based on spectrum of activity, based on resistance, and we also have to see for resistance either to acid route of administration or resistance to hydrolyzing enzyme which interfere for its chemical structure. तो ये 2 अलग अलग है. एक रेजिस्टेंस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक रेजिस्टेंस जो है वो उसकी मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है. समझ रहे हैं? Now, source-wise, we have got natural, we got biosynthetic, or that may be semi-synthetic. अच्छा जी. Naturally, we have penicillin G and V that are obtained. We have discussed that. Source क्या होगा उसका? Penicillin G और V का source क्या है? फंगस से म्यूटेटम, पेनिसिलिन म्यूटेटम. अरीब आपकी आवाज समझ नहीं आती. आप मैसेज आप लिख के लाएं. जी नोटेटम बिल्कुल फंगस. और दैट मे बी बायोसिंथेटिक. पेनिसिलिन जी, वी, एक्स, एफ एंड के that are being modified related to that mutation to those natural sources. Or semi-synthetically we have to modify those into oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin, ampicillin and methicillin. ठीक है, इसको हम फिर मॉडिफाई करते हैं. Route of administration either orally given or parenterally administered. These are 2 major routes for administration: amoxicillin, oxacillin, cloxacillin, dicloxacillin and ampicillin. Oral or parenteral इस क्लास ऑफ पेनिसिलिन को इसके साथ जोड़ना है आपने. समझते हैं ना? Resistant to acid. Those which are given orally mostly will have to be resistant to that acid. समझते हैं ना?
तो जो एसिड स्टेबल होंगे तो वो आमतौर पे ओरल ही देंगे, जो एसिड लेबाइल होंगे, एसिड अनस्टेबल होंगे, वो हम पेरेंटली ही देंगे। समझ रहे हैं? सो यू कैन correlate to that route of administration versus that acid. Acid mean for that GIT, stomach acid. तो जो स्टोमिक एसिड के लिए अनस्टेबल है तो उसको आपने पेरेंटली देना है, और जो आपने आपके पेनिसिलिन जो है वो एसिड स्टेबल है, यू कैन गिव थ्रू ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जी, and we got spectrum of activity: narrow spectrum methicillin, oxacillin, diclofenac, nefacillin; broad spectrum ampicillin, amoxicillin; intermediate penicillin G and B; extended spectrum penicillin, picoxicillin, azoxystrobin and metrocillin। एक उसमें पेनिसिलिन की है, सारे मेंबर्स तो यहाँ पे नहीं लिखे होते, पर resistant to hydrolyzing enzyme, resistant to beta-lactamase, methicillin, oxacillin, toxicillin, diclofenac. Non-resistance to beta-lactamase include penicillin G, B, ampicillin, amoxicillin and carbamazepine। बात ठीक है? बात ठीक है? चले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूं, फिर आगे जाते हैं। एक्सप्लेन करने की बात तो वहां पे इंडिकेशन में भी है, लेकिन बाद में आपको देखें। अच्छा, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी और इसके ये रेजिस्टेंट, ये दो एस्पेक्ट हैं। सोर्स तो नेचुरल या सिंथेटिक होगा, सेमी सिंथेटिक होगा, दैट इज नॉन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज वी हैव टू सी दैट वेदर दैट इज बीइंग एसिड रेजिस्टेंट और दैट इज बीइंग एसिड लिबाइल। जो रेजिस्टेंट है इसको आप ओरली दो, जो एसिड अनस्टेबल है इसको आप मोस्टली पेरेंटली दो, तो ये बात भी आसान है। और रेजिस्टेंट टू एसिड वो भी आसान है, जैसे मैंने आपको कहा एसिड रेजिस्टेंट को ओरल के साथ कोरिलेट करें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोरिलेट करें। असल जो है ना मसला, ये इन दोनों का है। अब बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड रेजिस्टेंट टू हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, वी हैव टू सी दैट नैरो स्पेक्ट्रम और वेरी नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन में एक टर्म इस्तेमाल होता है, वेरी 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 वेरी, 3-4 दफा वेरी लिख दें, नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, एंड दैट इंक्लूड दीज टाइप ऑफ ड्रग्स, मेथिसिलिन और नेफिसिलिन। अच्छा बात सुने, spectrum of activity, as I've told you, that is mainly related to R. Spectrum of activity is mainly related to bulk of that R. जितना आपका R छोटा होगा उतनी spectrum of activity बड़ी होगी, inverse related है। आपको ये बात समझ आई है? जितना R छोटा होगा उतना spectrum of activity बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? That is related to penetration. जितना R बल्कि होगा, so it has got bulky, it give bulk, larger molecular size to this penicillin. And if molecular size for penicillin is increased, you will actually correspondingly decrease chances for its penetration into that bacteria cell to reach पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन एज टारगेट। तो जितना आप बल्क मॉलिक्यूलर साइज बड़ा करते जाओगे उतनी आप बैक्टीरिया में इसके पेनिट्रेशन के चांसेस को कम करते जाओगे। तो बात यह है कि आपने आर को जितना छोटा रखा उसी के मुताबिक इसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी। आपको बात समझ आई हो तो फिर मैं आगे जा सकता हूं। भाई आपको समझ आई है मेरी बात? चले अच्छी बात। तो ऑक्सीसिलिन, डाइक्लोरोसिलिन, नेफिसिलिन जो है ये नैरो स्पेक्ट्रम इस वजह से हैं
कि उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बल्कि फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा है, इस वजह से वो ज्यादा अच्छी तौर से पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ कुछ खास ही बैक्टीरिया होंगे जहां पे वो जाके पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंच सकते हैं एज पेनिसिलिन एज ड्रग, समझते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पेसिलिन एमोक्सिसिलिन मीन दैट आर इज बिकम स्मॉलर, is become smart enough mean that it become smaller, so that it get more chances, more feasible structure, molecular shape, molecular size to penetrate into those bacteria cell and attach to binding protein for its activity. You can correlate for extended, you can correlate for that intermediate as well. अच्छा, इसमें जो चलें अभी वो इंडिकेशन में चले बात करेंगे. And resistant to hydrolyzing enzyme, those which are resistant to beta lactamase include methicillin, oxacillin, cloxacillin. अच्छा, आपने इधर देखें, ये जो नैरो स्पेक्ट्रम है, ये जो नैरो स्पेक्ट्रम है, ये रेजिस्टेंट है टू बीटा लैक्टामेज. आप इंटरेस्टिंगली देख रहे हैं ना, जो नैरो स्पेक्ट्रम है वो रेजिस्टेंट है टू बीटा लैक्टामेज. ये क्यों? ये इस वजह से कि वो इतना बल्कि फंक्शनल ग्रुप में छुपा होता है, कैमोफ्लेज होता है. कौन सी जगह? ये, अच्छा एक मिनट, मैं आपको फिर ऊपर लेके जाता हूं. ये आर अगर बड़ा होगा तो ये बड़ा होते होते क्या करता है, ये ऐसे 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 करते करते इस बीटा लैक्टेम को छुपा देता है अपने में. तो वो इतना छुपा देता है कि बीटा लैक्टेमेज जो है वो वहां तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता. तो बल्क पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी पेनिट्रेशन कम हो गई, लेकिन बीटा लैक्टेमेज पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोटेक्ट हो गया. इज इट क्लियर? हम यहां पे हैं कि we were discussing that we have to correlate with that narrow spectrum of activity. Some of those members belongs to penicillin, which are narrow spectrum for regarding their activity. They've got very limited types of bacteria which against which those penicillin have got their cellular activity. But those members have got interesting property related to their resistance to beta lactamase. And reason was, I've told you, that is associated to that functional group which is attached at C, at number 6. So this R, which is, if that is bulkier, it means that R will be responsible to cover this whole beta lactam ring, and covering mean that beta lactamase, which is penicillinase enzyme responsible to cause lysis of this beta lactam, will be unable to penetrate for its lysing activity. So R become bulkier, it means that become protective against beta lactamase. But R, if that become bulkier, has got inverse relation to that spectrum of activity. तो R बड़ा होगा तो स्पेक्ट्रम कम होगी, लेकिन R बड़ा होगा तो बीटा लैक्टेमेज के लिए उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. तो R के साथ सारी कहानी है. अच्छा, बीटा लैक्टेम के साथ एक्टिविटी है और आर के साथ उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको जरा ध्यान में रखें. बीटा लैक्टेम के साथ उसकी एक्टिविटी है और आर के साथ उसकी प्रॉपर्टीज हैं. प्रॉपर्टी रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी और प्रॉपर्टी रिलेटेड टू फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू इट्स पेनिट्रेशन इनटू दैट बैक्टीरिया टू दैट टारगेट पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन. तो ये बात याद रखें मेरे भाई. बीटा लैक्टेम के साथ एक्टिविटी है, बीटा लैक्टेम के बगैर वो एक्टिविटी शो नहीं करेगा. और आर के साथ उसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी वो वेरिएट करेंगे जैसे आप आर को वेरिएट करते हो. तो नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि आर इतना बड़ा हो गया कि बीटा लैक्टेम को उसने छुपा दिया है रिंग को, और बीटा लैक्टेमेज को वो जारी नहीं दे रहा कि वहां पे जाके उसको लाइज करे. लेकिन जितना आर बढ़ेगा तो वो स्ट्रक्चर को इतना बड़ा कर देगा कि फिर वो पोरीन से और बैक्टीरियल बाइंडिंग प्रोटीन तक पहुंचते पहुंचते इसको फिर प्रॉब्लम होगी. तो इस बुनियाद पे जितना बल्कियर आर होगा उतनी उसकी स्पेक्ट्रम नैरो होती जाएगी. मैं आगे जाऊं भाई. यस सर. चलिए,
Generally, beta-lactam have got 5 types related to their activity, related to their efficacy. Penicillins, cephalosporins, carbapenems, monobactams and beta-lactamase inhibitors. ये 5 हैं जो अपने अपने टाइप्स की बुनियाद पे वो हम उसको बीटा है तो जनरली बीटा-लैक्टेम उनके स्ट्रक्चर में बीटा-लैक्टेम रिंग ही होगा जिसकी बुनियाद पे उसकी एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी लेकिन अदरवाइज देयर इज डिफरेंस फॉर इट्स स्ट्रक्चर देयर इज डिफरेंस रिलेटेड टू देयर एक्टिविटी देयर इज डिफरेंस रिलेटेड टू देयर स्पेक्ट्रम देयर इज डिफरेंस रिलेटेड टू देयर एफिकेसी देयर इज डिफरेंस रिलेटेड टू देयर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल सो वी हैव गॉट पेनिसिलिन्स we got cephalosporins, we got carbapenems, जिसमें हम meropenem और imipenem की बात करते हैं, और monobactam जिसको हम एस्ट्रेनियम जिस जैसे हम members हैं उसकी बात करते हैं. One of that additional beta-lactamase inhibitor that is not classical member for beta-lactam, but that is additional that act as guard to protect beta-lactam antibiotics against adverse lysing activity by beta-lactamase. तो क्लेवरोनिक एसिड, साल्बैक्ट्रम या टेजोबैक्ट्रम जो हैं वो क्लासिकल बीटा-लैक्टेम नहीं होते. याद रखें. अच्छा, क्लेवरोनिक एसिड, साल्बैक्ट्रम और टेजोबैक्ट्रम जो हैं वो क्लासिकल बीटा-लैक्टेम एंटीबायोटिक्स नहीं है लेकिन इनके बगैर ये जो वो हैं दूसरे हैं पेनिसिलिन हो गया, सेफलोस्पोरिन हो गया, कार्बापेनेम्स हो गए, मोनोबैक्टम्स हो गए, उसके बगैर इनकी जो प्रोटेक्शन है वो फिर मुश्किल हो जाती है. इस वजह से हम इसको आमतौर पे कॉम्बिनेशन में दे देते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज एफिकेसी, वी कैन इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑफ बीटा-लैक्टेम एंटीबायोटिक्स. एक मिनट, कौन आ गया? There is a major target for its activity if that is being inhibited for synthesis by beta-lactam drugs that include penicillin, cephalosporin, carbapenems and monobactam that will be related to site of action that will be different from cycloserine, vancomycin and vancomycin. हम अपने मैकेनिज्म में फिर पढ़ेंगे लेकिन बहरहाल इनका टारगेट एक होता है सेल वॉल और इनका ऑब्जेक्टिव एक होता है कि उनके सिंथेसिस को इंटरफेयर करें लेकिन इनका जो साइट ऑफ एक्टिविटी है वो फिर डिफर करती है, वेरी करती है पेनिसिलिन का और साइक्लोसेरिन से, वेनकोमाइसिन से, बेसेट्रासिन से. सादा में अगर अभी फॉर टाइम बिंग अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये है पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन are mainly related to interfere in cross linkage of those amino acids which are meant to give integrity to cell wall as compared to vancomycin and these are responsible to interfere for those amino acids which are not being allowed to be linked with other side chain amino acid. जिसको समझ आई है तो उसको समझ आ गई है, जिसको नहीं आई तो फिर वो वेट करें डिटेल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तक. ये क्या करते हैं? पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन क्या करते हैं? वो क्रॉस लिंकेज को इंटरफेयर करते हैं और वेनकोमाइसिन जो है वो क्या करता है? वो वेनकोमाइसिन उस एक अमीनो एसिड को जाके वो इंटरफेयर करता है कि वो जाके क्रॉस लिंक ना करे. तो क्रॉस लिंकेज ब्रिज का बनना अलग है और ब्रिज के लिए जो ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को इंटरफेयर करना अलग है. तो वेनकोमाइसिन उन ब्लॉक्स पे काम करता है और पेनिसिलिन और सेफलोस्पोरिन उस ब्रिजिंग पे काम करता है. तो these are different things. Net result will be same, that cell wall will be interfere for its normal synthesis and if they're not being properly synthesized it means that integrity will become loose. आप समझ आइए? चलें आगे जाएं. Before discussing that mechanism of action, we have to know that a difference between structure of that gram positive and gram negative bacteria. याद रखें भाई, बात सुनें. पेनिसिलिन का जो जनरल टारगेट है वो ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव भी है लेकिन ग्राम नेगेटिव कम है. तो पेनिसिलिन बिलोंग्स टू ग्राम पॉजिटिव in major and gram negative in minor. And reason is we will discuss that if you can see the difference related to that target area which is cell wall that has got difference for its integrity, for its structure, for its composition
ऑफ ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर में डिफरेंस ये है, याद रखें, दो मेजर डिफरेंसेस याद रखें, दो मेजर डिफरेंसेस याद रखें। ग्राम पॉजिटिव का जो आउटर है वो सेल वॉल होता है, और सेल वॉल किस चीज से बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। और उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो एक दूसरे के ऊपर वो ब्रिजेस बना रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना रहे होते हैं। दैट लेयर्स कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 30, 40, 50, 60 लेयर्स, वन अबव द अदर। ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है? सो दैट इज बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये कौन सी जगह है? ये नीचे जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज लिपिड बाइलेयर, and above this cell membrane, plasma membrane, we got this layer of peptidoglycan one above the other, and that whole layer, for number of times, dozens of those layers, actually constitute a single cell wall. तो जो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल है वो आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन के नंबर ऑफ लेयर से बना हुआ होता है, एज कंपेयर टू दिस ग्राम नेगेटिव have got this cell membrane, a very thin peptidoglycan layer. This constitutes for cell wall, and above this cell wall we have got second layer of this cell membrane. तो ग्राम नेगेटिव में क्या हुआ? दो डिफरेंसेस हुई एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव में सेल मेम्ब्रेन है, आउटर टू साइटोप्लाज्म, और उस सेल मेम्ब्रेन के आउटर क्या है? सेल वॉल। लेकिन वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन के डजन्स ऑफ लेयर से एक दूसरे के ऊपर बने हुए से बनता है। तो ये स्ट्रक्चर है सेल ग्राम पॉजिटिव का। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल के ऊपर फिर दूसरा सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव का सेल है, ग्राम नेगेटिव के सेल में आपका अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है, और उस सेल वॉल के ऊपर फिर तीसरा लेयर है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन 2 कहते हैं। तो ग्राम नेगेटिव में सेल मेम्ब्रेन 2 है, ग्राम पॉजिटिव में सेल मेम्ब्रेन 2 नहीं है। डिफरेंस 1। डिफरेंस 2, ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन के थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसमें थिन होता है। थिन इस वजह से होता है कि उसका पेप्टाइडोग्लाइकेन के जो लेयर्स हैं वो कम होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में दर्जनों के लिहाज से होते हैं, और ग्राम नेगेटिव में कुछ एक या दो तीन लेयर्स होते हैं। आपको बात समझ आइए तो फिर मैं आगे जा सकता हूं। अगर आपको ये बात समझ नहीं है फिर बात करना मुश्किल है। ठीक, गुड। ये पहला डिफरेंस हुआ। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन बनता किससे है? पेप्टाइडोग्लाइकेन दो ब्लॉक से बनता है। दो ब्लॉक कौन से हैं? दो ब्लॉक ये वाले हैं, नेम एंड नैग। नेम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग एन एसिटाइल ग्लूसामीन। ठीक हो गया? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये जो ग्लूकोसामीन है वो आपके नैम के साथ दो तरीकों से अटैच होता है। एक अपना चेन बनाता है, अल्टरनेट, नैम अटैच विद नैग, नैग अटैच विद नैम एंड सो ऑन। और दूसरा उसकी क्रॉस लिंकेज होती है, जो एक लाइन में बने हैं वो अपने तौर पे, और उसके साथ जो पैरेलल दूसरा लाइन है वो फिर क्रॉस लिंक होते हैं थ्रू नैम। तो नैम अटैच विद नैम, and that attachment that take place through amino acid, this amino acid is known as D-alanine. कहां पे वो क्रॉस लिंक करते हैं? नैम पैरेलल लाइन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ क्रॉस लिंक करता है थ्रू अमीनो एसिड। तो ये नैम के साथ जो है वो अमीनो एसिड जो है वो अटैच होते हैं। कितने अटैच होते हैं? 5 अटैच होते हैं, और दूसरे के साथ 4 अटैच होते हैं। 4 कर दें, 4 अमीनो एसिड जो हैं वो नैम के साथ अटैच होते हैं। नैम के साथ कोई अमीनो एसिड अटैच नहीं होता। समझ रहे हैं?
तो ये जो नैम है उसके जो अमीनो एसिड हैं वो पैरेलल पेप्टाइडोग्लाइकेन के अमीनो एसिड के साथ क्रॉस लिंक करते हैं, तो हम इस क्रॉस लिंक को कहते हैं डी एलानीन क्रॉस पेप्टाइडेज, cross linkage. And this enzyme which is responsible to bridge D-alanine of NAM1 versus D-alanine of NAM2, this enzyme is known as transpeptidase. आपको बात समझ आई या नहीं आई? पता नहीं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा तो फिर N-acetyl muramic acid and NAM stand for, और NAG stand for N-acetyl glucosamine. चले मैं फिर बोलता हूं, जरा ध्यान दें। ये आप देखें, ये तो आपको पता चला सेल मेम्ब्रेन है ग्राम पॉजिटिव का, इसके ऊपर सेल वॉल है, उसके ऊपर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव में सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जो है वो पतला सा सेल वॉल है और ऊपर जो है फिर सेल मेम्ब्रेन है। ये बात तो क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं इस सेल वॉल की। सेल वॉल किस चीज से बना है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना है। पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज से बना है? दो ब्लॉक से बना है। सेल वॉल बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडोग्लाइकेन बना है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से। इन दोनों के ब्लॉक के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट से ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बना होता है। तो मैंने आपको बताया कि पेप्टाइडोग्लाइकेन एक लेयर तो नहीं होता ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन के तो दर्जनों लेयर्स होते हैं। तो एक पेप्टाइडोग्लाइकेन और दूसरा पेप्टाइडोग्लाइकेन इस अंदाज से एक दूसरे के साथ पैरेलल लेयर बाय लेयर चल रहे होते हैं। अब ये जो लेयर है नैम का, ये दूसरे लेयर के नैम के साथ क्रॉस लिंक करता है। नैग के साथ क्रॉस लिंक नहीं करता, क्योंकि इस वजह से कि नैग के साथ अमीनो एसिड नहीं लगे होते, सिर्फ नैम के साथ अमीनो एसिड लगे होते हैं। तो जो नैम ऑफ लेयर 1 है वो नैम ऑफ लेयर 2 के साथ क्रॉस लिंक करता है एट अमीनो एसिड दैट इज नोन एज डी एलानीन, and that enzyme which is responsible to give cross bridging, cross linking, cross attachment of D-alanine of NAM peptide 1 versus NAM of peptide 2. This enzyme is known as transpeptidase. आपको बात क्लियर है तो मैं आगे जा सकता हूं। भाई आपको आवाज है? अहमद आपको समझ आई है? मैं आगे जाऊं? चलो जी। ये हमने अभी पेनिसिलिन की बात नहीं की। अच्छा, पेनिसिलिन इसके बाद हम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पेनिसिलिन दो तरीकों से काम करता है। एक न्यूली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए है, वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो न्यूली रिप्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म में ज्यादा इन्वॉल्व वो है जो अभी हमने बात की कि नया सेल वॉल जब बनता है तो सेल वॉल के बनने के लिए फिर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन्स बनते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स बनाने के लिए ये क्रॉस लिंक करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज से। तो चूंकि नए सेल बन रहे होते हैं ना, तो सेल वॉल हर एक सेल का हर एक अलग अलग सेल वॉल बन रहा होता है। So that is one aspect for that activity which has to be associated to that interference, that synthesis that will be interfered by penicillin. Other activity related to this autolysin, that is again one of that special enzyme responsible to cause interfering with that cell wall. वो कैसे करता है? Penicillin that enters over here, that attached to penicillin binding protein. This binding protein is present across cell wall at that outer surface of cell membrane. तो ग्राम पॉजिटिव है ना या ग्राम नेगेटिव है, तो नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या होता है? सेल वॉल। तो अगर ग्राम नेगेटिव है तो उसके ऊपर क्या होगा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन 2। और अगर ग्राम पॉजिटिव है तो होगा सिर्फ सेल वॉल। तो आपका आता है पेनिसिलिन, वो पेनिट्रेट कर रहा है, तो पेनिट्रेशन के बाद वो अपने बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके अटैच होता है। बाइंडिंग प्रोटीन कहां पे है? सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पे है। सेल मेम्ब्रेन कहां पे है? वो इनर टू सेल वॉल है। तो जब आपके अटैचमेंट हो जाती है
Now, one of that mechanism that was discussed earlier, other mechanism related to its activation of this autolysin. This autolysin is that enzyme which interfere for those precursor responsible to give building block to this cell wall and lysis of already built cell wall. सही है? तो वो RD बैक्टीरिया के साथ precursors are cross-linked by penicillin binding protein and are added to cell wall. Penicillins enter penicillin binding protein इनको एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं. तो क्या मतलब हुआ? क्या होता है? Peptidase is a type of penicillin binding protein. Penicillin binding protein क्या है? वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है जिसपे आपका पेनिसिलिन आके अटैच होता है और उसके सिंथेसिस में क्रॉस लिंकेज में इंटरफेयर करता है. पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या हुआ? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम है की शक्ल है जहां पे पेनिसिलिन आके उसके एक्टिविटी पे इंटरफेयर करता है और सेल वॉल को प्रॉपर्ली क्रॉस लिंक नहीं होने देता. Penicillin enters the cell through porins. These are holes that are present in that cell wall as well as cell membrane and bind to penicillin binding protein. Penicillin binding protein are present at that outer surface of cell membrane. Binding leads to release of autolysin which break down formed cell wall. मैंने आपको बताया था ना, जो RD बने हुए हैं सेल वॉल हैं तो उनकी लाइसिस होती है ऑटोलाइसिन से. After penicillin it binds to penicillin binding protein. Penicillin binding protein can no longer synthesize protein essential to cell wall integrity. Cell wall lose integrity and can no longer preserve for its normal functioning. आप इधर हैं? ये मैकेनिज्म खत्म कर लें. नमाज का टाइम तो 1:30 बजे है कि नहीं? नहीं, ख्याल फिर बाद में बताएं अपनी नमाज. All beta-lactam antibiotic inhibit bacterial growth by interfering with the transeptidation reaction of bacterial cell wall synthesis. जैसे मैंने आपको पहले बताया, ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या है? वो नैम दूसरे नैम के साथ क्रॉस लिंकेज का नाम ट्रांसपेप्टाइडेशन है. The cell wall is a rigid outer layer unique to bacterial species. It completely surrounds the cytoplasmic membrane, maintain cell shape and integrity, and prevents cell lysis from high osmotic pressure which is present inside that bacterial cell. Cell wall is composed of a complex cross-linked polymer of polysaccharides and polypeptides. These are known as peptidoglycan. The polysaccharide contain alternating amino sugar N-acetylglucosamine and N-acetylmuramic acid जैसे मैंने आपको पहले बताया. A 5-amino acid peptide is linked to N-acetylmuramic acid sugar. The peptide terminates in D-alanine. Penicillin binding protein, that is enzyme, removes the terminal alanine in the process of forming a cross-link with a nearby peptide. Cross-links give its structural rigidity. Beta-lactam antibiotics, structural analog of natural D-alanine substrate, covalently bind to active site of penicillin binding protein. This inhibits the transpeptidation reaction in halting peptidoglycan synthesis and cell dies. Suppose way. चलें तैयारी करते हैं, बस ये बात खत्म कर लें. मैं फिर बोलूं मैकेनिज्म, मैं फिर बोलूं. कि स्लाइड को छोड़ दें, मेरी बात सुनें. स्लाइड आप फिर उसको रीड करते जाते हैं, फिर मसला हो जाएगा. स्लाइड छोड़ दें, मेरी बात सुनें. बैक्टीरिया सेल में कितने लेयर्स हैं? अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन, इससे ऊपर वाला सेल वॉल. ये किसकी बात हो रही है?
पॉजिटिव की। नेगेटिव में एक तीसरा लेयर भी होता है, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन 2। ये बात क्लियर होगी। अब जो सेल वॉल है किस चीज का बना है? सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन के, पॉलीमर्स का, पॉलीसेकेराइड का। पेप्टाइड जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज के बने होते हैं? नैम और नैग के अल्टरनेट ब्लॉक से बने होते हैं। वो एक दूसरे के साथ पैरेलल अटैच होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ ऊपर भी, आगे पीछे भी अटैच होते हैं, ऊपर नीचे भी अटैच होते हैं। उन दोनों की ऊपर नीचे की अटैचमेंट होती है थ्रू डी एलानीन अमीनो एसिड्स। इन दोनों की अटैचमेंट होती है डी एलानीन अमीनो एसिड से। अब ये जो अजान जाते हैं के अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर सेल, बैक्टीरिया में अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है। सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन दो चीजों के मिलाप का नाम है। इसको हम एक ब्लॉक को कहते हैं नैम, दूसरे को कहते हैं नैग। ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अगर सेल वॉल में अगर आप इसको देखें तो वो जो है वो दर्जनों के लिहाज से लेयर बना रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ये जो लेयर्स बना रहे होते हैं तो इन लेयर के एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है, इस ब्रिज को ये डी एलानीन एक दूसरे के साथ अटैच कराता है, डी एलानीन अमीनो एसिड। अब ये जो डी एलानीन है वो कब ब्रिज कराता है? जब उस पे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम आके काम करता है। क्या काम करता है? ट्रांसपेप्टाइडेज आके डी एलानीन को डी एलानीन ऑफ नैग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच करता है, क्रॉस करा देता है। अब जब क्रॉस करा रहा होता है उस वक्त पेनिसिलिन आ जाता है। पेनिसिलिन आ जाता है तो उसकी डी एलानीन के साथ स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस है। आपका ट्रांसपेप्टाइडेज बजाय इसके कि डी एलानीन को ले ले, आपके पेनिसिलिन को ले लेता है। तो जब पेनिसिलिन ले लेता है तो डी एलानीन के साथ क्रॉस लिंक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके लिए जो एंजाइम है जो इनको क्रॉस करा रहा होता है, इन क्रॉस लिंकेज के लिए ट्रांसपेप्टाइडेज अवेलेबल नहीं होता, फ्री नहीं होता, क्योंकि उस पे आरडी पेनिसिलिन ने जाके उसको अटैच किया होता है कोवेलेंटली। तो वो नहीं होता तो क्रॉस लिंकेज नहीं होती। क्रॉस लिंकेज नहीं होती तो फिर वो एक लेयर दूसरे लेयर के साथ क्रॉस लिंक नहीं कर सकता और उसकी सेल वॉल की इंटेग्रिटी फिर कमजोर हो जाती है। सेल वॉल की इंटेग्रिटी कमजोर हुई तो फिर अंदर जो बैक्टीरिया सेल में अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इतना ज्यादा है कि वो वीकर सेल वॉल उसको जाके बर्दाश्त नहीं कर सकता एंड अल्टीमेटली दैट रप्चर्स। बात क्लियर है? बात क्लियर है? खत्म करते हैं।